الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إن الله خلق الخلائق فجعلني من خير الخلائق ثم خلق القبائل فجعلني من خير القبائل ثم خلق البيوت فجعلني من خير البيوت ثم خلق الأنفس فجعلني من خير النفوس وفي مقام آخر ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وفي مقام آخر من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے طٰہٰ سے آیا ہے
تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین علاقہ، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 24 اکتوبر سن 2025 کو آپ حضرات کے اس علاقہ کیا نام ہے ڈیرہ موسیٰ فاروق آباد میں برادر مکرم استاد القرآن عالم باعمل حضرت مولانا قاری محمد فلک شیر نقشبندی صاحب کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات کے اس مسجد میں علاقہ میں پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مسجد کو ایک عظیم الشان مسجد میں تبدیل فرما دے۔ آمین تو کہہ دو، میں نے چندہ تو نہیں مانگا۔ اور صبح قیامت تک اللہ اس کو اور اس کے آباد کرنے والوں کی نسلوں کو آباد رکھے۔ میں اور آپ آج یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر کا ذکر پاک کرنے کے لیے، مگر میں جہاں فرسٹ ٹائم جاتا ہوں، پہلی دفعہ حاضری ہوتی ہے، تو مجھے تھوڑا سا اپنا ذوق خطابت کا تعارف کرانا پڑتا ہے کہ میں عام خطیبوں سے تھوڑا سا ہٹ کے مزاج رکھتا ہوں۔ میں نے الحمدللہ 85 سے 1985 سے خطابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 2025 اپنے اختتام کی طرف ہے، تو یوں 40 سال ہو گئے مجھے اس سمندر میں تیرتے ہوئے، مگر میں کہا کرتا ہوں کہ ان 40 برسوں میں اللہ رب العزت نے اپنی دین اور اپنے محبوب کی برکت سے پوری دنیا مجھے گھمائی، عرب، عجم، یورپ، افریقہ، کینیڈا، دنیا کے 70 سے زیادہ ملکوں میں میرے بیانات ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ہر سال جاتا ہوں، ابھی بھی 1 مہینہ پہلے انگلینڈ کا دورہ کر کے واپس آیا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 85 سے لے کر ٹوڈے آج کے دن تک میری کوئی تقریر اٹھائیں، کیسٹ، آڈیو، ویڈیو، سی ڈی، تو میری تقریر میں نہ تو کوئی لطیفے ہوتے ہیں، نہ کچھ چٹکلے ہوتے ہیں،
نہ کوئی ہنسانے رلانے گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، علماء حق کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی کوئی طلب کا جذبہ چھلک رہا ہو۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، آپ مقرر کو تڑپاتے ہیں، خود ہلتے ہی نہیں۔ لمبا سفر کر کے ہم آتے ہیں، تھکا ہوا مجمع ہوتا ہے، دن رات ہم جاگتے ہیں، تم 2-3 مہینے میں ایک جلسہ سنتے ہو، پھر بھی تھکے لگتے ہو۔ ہم ڈیلی کا 8-10 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں، پھر بھی الحمدللہ پھولوں کی طرح مہک کر آتے ہیں، ہاں، تاکہ کوئی ہمیں تھکا ٹوٹا دیکھ کر مایوس نہ ہو جائے، آج مولی تھکا ہو یا انہیں کی بول رہے ہیں، ہاں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مجھے سننا ہو تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجاہٹ، ہچکچاہٹ، کپکپاہٹ، تڑتڑاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کھلا کے بیٹھو، مسکرا کے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ تاکہ آج کیا نام بتایا ڈیرے کا؟ موسیٰ آباد، ڈیرہ موسیٰ آباد والوں کو میں اللہ کے پیغمبر کے شان کے سمندر میں سے صرف ایک لہر دے کر جاؤں۔ ایک دفعہ دل کے گونج کے مجاہدوں کی طرح کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستو پوری توجہ رہے، بچے کو جانے دو، آئندہ بچوں کو پیچھے بٹھایا کرو، یہ پھر ایسے آتے جاتے رہتے بیچارے۔ اور سٹیج بھی مولانا جیسے آپ کی جگہ چھوٹی تھی تو وہاں سٹیج بناتے سامنے، اب ایک کونے میں سٹیج ہے، مجمع ادھر ہے، تو یوں سارا مجمع سامنے ہوتا۔ اور میرے خیال میں جب جگہ کم تھی سٹیج بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہاں پہ کرسی ہوتی اور ہم سب اکٹھے بیٹھ جاتے اور آسانی سے لوگ سما جاتے۔ بہرحال آپ اپنی توجہ میری طرف رکھیں گے تو میں بات کو شروع کر پاؤں گا۔ اب ادھر سے کوئی بھی آ جائے، سی ایم پی ایم، ہاں، آپ کی نظر اگر ادھر گئی تو میں دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دوں گا۔ میں شروع میں کہتا ہوں دل والا مولوی ہوں، وہ نہیں ہوں پیسہ پھینک تماشا دیکھ، ہاں، میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے، نہیں، مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، پیسے جیب میں رکھنا، صرف اپنے دل اور دماغ کی توجہ مجھے دینا تاکہ میں آج آپ کے دلوں میں نبی کی محبت کا سمندر بہا کے جاؤں۔ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری طرف آدھا پونا گھنٹہ بولوں گا، میری تقریر ویسے بائر ہوتی ہے، بائی روڈ ہوتی نہیں، تو میں آدھے پونے گھنٹے میں بھی 3 گھنٹے والی تقریر کر جاتا ہوں جتنی تیزی سے میں بولتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ آج کی گفتگو آپ کو بڑی دیر اور دور تک یاد رہے گی۔ میرے دوستو، عنوان اللہ کے پیغمبر کی سیرت و عظمت، آمد و ولادت اور رفعت و منقبت کا ہے، اور قاری صاحب نے مجھے بڑا اسپیشلی ریکویسٹ کی ہے کہ آج میں اللہ کے اس پیغمبر کا شان سناؤں جس کے لیے سارا جہان بنا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ میری تو عادت ہے کہ میں اپنی ہر تقریر کا آغاز، اپنی گفتگو کی ابتدا سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و طاہر، مکرم، منور، معمبر، معطر، بابرکت و باسعادت، طیب و طاہر، اطہر و مطہر، عرفہ و اعلیٰ، برتر و بالا، نام نامی اور اسم گرامی سے کرتا ہوں، اس لیے کہ خود خالق کائنات، مالک لم یزل، رب الارض والسماوات نے کہا، میرے پیغمبر، میرے حبیب اور لاڈلے محبوب اور محجبین حسین و نازنین پیغمبر، میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے، یہ عہد و اقرار، میثاق و پیمان ہے کہ سرزمین کائنات کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا فضا خلا کے جس جھونکے پر، جس درخت کے پتے پر، جس پھول کی پتی پر، جس پانی کی لہر پر، جس شبنم کے قطرے پر، جس پرندے کی اڑان پر، جس انسان کے دل و دماغ و زبان پر، جس کتاب کے ورق پر، جس قلم کی نوک پر تیرا ذکر ہوگا، میں رحمت کی بارشیں برساؤں گا۔ تو میں بھی چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آج اللہ کے اس پیغمبر کا ذکر پاک کروں تاکہ میرے اور آپ کے دلوں پر بھی
अब्रे रहमत की बारिश के कतरे बरसे। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना कि वो पैगंबर, जिस पैगंबर के लिए मैं कहा करता हूँ कि उस नबी का शान मेरे या आपके बस का रोग ही नहीं है। पहले तो मेरी ज़बान में कोई इतनी ताकत और कुव्वत और सकत और हिम्मत और जुर्रत ही नहीं कि मैं अल्लाह के पैगंबर के शान को कमा हक़हू खराज अकीदत का सलाम कर सकूं। क्यों? मैं तो कहा करता हूं कि मेरी मिसाल तो बाज़ार मसर की उस बुढ़िया की है जिसके सर पे कपास की गठड़ी थी और वो मसर के बाजार में खड़ी थी। किसी की नज़र पड़ी तो पूछा, अम्मा खैरियत, कैसे आई हो, क्या करने आई हो, क्या लेने आई हो? तो उस अम्मा ने कहा, बेटा सुना है आज बाजार में यूसुफ बिक रहा है और मैं भी यूसुफ को खरीदना चाहती हूँ। तो उस जवान ने कहा, अम्मा तेरी अकल मारी तो नहीं गई, तुम मरफूअल कलम दीवानी तो नहीं हो गई? यूसुफ को खरीदना चाहती हो और कपास की गठड़ी के बदले वो इतना कम कीमत नहीं, वो इतना सस्ता नहीं। यूसुफ तो हुस्न का पैकर है, मंबा है, मावा है, मलजा है, मेवर है, मरकज है, सरापा है। यूसुफ तो हसीनों का कायद है, राहबर है, मुक्तदा है, पेशवा है, इमाम है, सैयद है, सरदार है, सरताज है। वो इतना कम कीमत नहीं। यहाँ तो बड़े बड़े सौदागर, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े शहजादे, बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े सीमो जर के मालिक खड़े हैं। यूसुफ को वो ले जाएंगे तो हाथ मलती रह जाएगी। जा अपना वक्त खराब न कर, जाके घर का काम काज कर, यूसुफ को लेना तेरे बस का रोग नहीं। तो उस अम्मा ने रोकर कहा, अपने आंखों में आंसू की लड़ी परोकर कहा, बेटा पता तो मुझे भी है कि यूसुफ को खरीदना मेरे बस का रोग नहीं, लेकिन शाम तक कतार में इसलिए खड़ी रहूंगी कि यूसुफ मिले न मिले, कयामत के दिन इसके चाहने वालों में मेरा नाम तो आ जाएगा। बात मेरी भी वही है कि मैं अल्लाह के पैगंबर की सीरत और सूरत और इज्जत और अजमत और रफत और मनकबत, अल्लाह के पैगंबर का तकद्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनकबत, इफ़्फ़त, अजमत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, अतवार, आदात, अकवाल, अफ़ाल, आमाल, अनवारात और तजल्लियात के खदो खाल मैं बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे इन टूटे फूटे जुमलों से मेरा नाम भी पैगंबर के मदह सराओं की लिस्ट में तो आ जाएगा। वगरना मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, मैं अगर सिर्फ उस नबी की सीरत पे बोलने पे आऊं तो मेरे नबी की सीरत के पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। उस नबी की सीरत के उन्वानात इतने हैं, उस नबी की सीरत के पहलू इतने हैं, उस नबी की सीरत के ज़ेबे उन्वा इतने हैं, उस नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन इतनी बड़ी है कि अगर मैं सारी रात भी लगाऊं और नबी की सीरत के सिर्फ उन्वानात गिनवाने चलूं, रात गुजर सकती है, मेरे नबी की बात नहीं गुजर सकती। क्यों? पूरी तवज्जो रहे। अब बात को शुरू करने चला हूं इसलिए कि मेरे नबी की सीरत के मुख्तलिफ पहलू हैं, मेरे नबी की आमद के मुख्तलिफ पहलू हैं, मेरे नबी की अजमत के मुख्तलिफ पहलू हैं, मेरे नबी की रफत के मुख्तलिफ पहलू हैं, मेरे नबी की मनकबत के मुख्तलिफ पहलू हैं। मैं अगर सिर्फ कुरान खोलूं तो सिर्फ कुरान में मेरे नबी की अजमत और रफत और मनकबत के 750 मौजू नजर आते हैं। मैं नबी के फरमान खोलूं तो हजारों अहादीस का मुझे जखीरा नजर आता है। मैं तकवीने कायनात पढ़ूं, पैगंबर का जिक्र मिलता है। मैं तस्वीरें कायनात देखूं, नबी का जिक्र मिलता है। मैं तारीखें कायनात पढ़ूं, नबी का जिक्र मिलता है। मैं तस्वीरें कायनात देखूं, मेरे नबी का जिक्र मिलता है। इसलिए कि मेरे नबी की अजमत के इतने पहलू हैं कि मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है जिसे कायनात के रब ने आलमे अरवा में अंबिया की रूहों के सामने वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में बयान किया। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है कि जिसे रब्बे कायनात ने आलमे अर्श में अंबिया अरवा के मलाइक के सामने बैठकर अपने अंदाज में बयान किया। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है कि जिसे जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने शजरे तूबा के पत्तों
किताबों में लिखा हुआ देखा। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है जिसे जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश के सामने अपनी वसीयत में बयान किया। ये मैं एक एक जुमला नहीं कह रहा, मैं एक एक आयत या एक एक हदीस का तर्जमा कर रहा हूँ। आले ज़ौक़, आले नजर, आले इश्क, आले उमुक, आले डीप, आले बसीरत, आले बसारत मेरे जुमलों को हदीस के पैराए में तोलेंगे। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं तो मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है कि जिसके बारे में जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में बैठकर अपनी उम्मत के सामने बयान किया। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है कि जिसे जनाब इब्राहिम और इस्माइल ने तामीर बैतुल्लाह के बाद अपनी दुआओं में बयान किया। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है कि जिसे जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने अपनी आरज़ुओं में बयान किया। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है कि जिसे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर की बशारतों में बयान किया। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है कि जिसके लिए जनाब आमना कहती है जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं अगर पत्थरों पे कदम रखती हूँ तो पत्थर भी फूल बनकर मेरे कदमों के बोसे लेते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। ईमान से बताओ मेरी तकरीर के मुताबिक तुम्हारे नारे का जवाब था? घड़ी पे देखना, मैंने 15 मिनट के बाद सांस लिया है और तुम्हारा नारा होता है बीमारों वाला। फिर कहाँ दिल करता है कि यहाँ बोलो। नारे तकबीर। जितने बंदों में मैं बयान कर रहा हूँ इतना तो रोज़ मेरे डेरे पे फैसले कराने आते हैं। हाँ, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं छोटे बड़े मजमे को नहीं देखता क्योंकि हम अल्लाह के दीन के लिए घूम रहे हैं। हाँ, पूरी तवज्जो रहे ताकि मैं ज़ौक़ से बात कर सकूं। हाँ, जब भी मेरे दिल की कोई बात तेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक देना फौरन कुंडी खोल के कहना सुभान अल्लाह। मेरे नबी की अज़मत का एक पहलू वो भी है जिसके लिए जनाब आमना कहती है जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है तो मैं जब पत्थरों पे कदम रखती हूँ तो पत्थर भी फूल बनकर मेरे कदमों के बोसे लेते हैं। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है जिसके लिए जनाब आमना कहती है जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं अगर रास्तों पे चलती हूँ तो हजर और शजर भी झुककर मुझे सलाम करते हैं। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है जिसके लिए जनाब आमना कहती है जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं जिस गली से गुजरती हूँ वो गली खुशबू से महक जाती है। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है जिसके लिए जनाब आमना कहती है जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं रात को जब बिस्तर पे सोती हूँ तो मुझे लगता है कि चांद और तारे भी झुककर मेरे कदमों को चूमने आते हैं। और मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है जिसके लिए जनाब आमना कहती है जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं जब बकरियों को चराने जाती हूँ तो सारी बकरियां अदब से सर झुकाकर मेरे पीछे चलती हैं, कोई बकरी मेरे आगे नहीं आती। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है जिसके लिए जनाब आमना कहती है जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं अगर कुएं पे पानी भरने जाती हूँ तो कुएं का पानी भी उबल कर मेरे पाँव को चूमने आता है। और मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर अपना चेहरा खोले अल्लाह वज़ुहा कह दे, मेरा नबी सुल्फे खोले अल्लाह वल्लैली इज़ा सजा कह दे। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर मुस्करा पड़े तो तैयब कायनात की गुम होने वाली सुई भी वापस मिल जाए। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर मुस्करा दे तो जन्नत के फूल खिलने लग जाए। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर गुस्से में आए तो जहन्नम के अंगारे भड़कने लग जाए। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर चले मेरे नबी के पसीने से मुश्कोंपर से ज्यादा खुशबू की महक शुरू हो जाए। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे आसमान का चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे अल्लाह आसमान के सूरज को रोक कर नमाज का वक्त दोहरा दे। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे जमीन के दरख्त जमीन चीर कर मेरे नबी के कदमों में हाजिरी लगवाने आ जाए। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे पहाड़ों के पत्थर भी मेरे नबी का
कलमा पढ़ते नजर आए। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे तो दरख्तों के पत्ते भी मुझे नबी का कलमा पढ़ते नजर आए। मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है कि मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे तो अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मुझे मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दे। और मेरे नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है कि मेरे नबी के कदम भी जहां जहां पे लगते गए अल्लाह उसे भी कायनात में ऊंचा करके नबी की निस्बतों को ऊंचा करता गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान देखो। पौना घंटा मैंने बोलना था, आधा घंटा तमीद में हो गया। और अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूँ भी तकरीर करनी है या टाइम पास करना है। जो जाग रहे हैं कह दें सुभान अल्लाह। जितना इश्क हो उतनी जोर से कह दें सुभान अल्लाह, ताकि दुनिया को पता तो चले ना असल इश्क होता क्या है। हा? मैं आपकी जेबें काटने नहीं आया, लूटने नहीं आया, वेलों के नाम पे मैं आपके वापसी के पेट्रोल के पैसे छीनने नहीं आया। मैं आपको अल्लाह के नबी का शान सुनाने आया हूँ। पूरी तवज्जो रखना, बात आगे चलाने चला हूँ। तवज्जो मेरी तरफ, या शेख मैं तो देख, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। बड़ी मुख्तसर बात करने चला हूँ। तवज्जो है, तवज्जो है, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना। बात को किनारे की तरफ लेके चलने चला हूँ कि उस पैगंबर का शान, उस नबी का मिलाद, उस नबी की आमद, उस नबी की विलादत, उस नबी की बेसत, उस नबी की नबुव्वत, उस नबी की रिसालत, उस नबी की खत्म नबुव्वत, उस नबी की शरीयत, उस नबी की सदाकत, अदालत, दयानत, शुजाअत, सखावत, फरासत, मुझ जैसा तिफल मकतब। क्या बयान करे। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना। बच्चे को बिठा दो भाई, कोई बच्चा खड़ा ना नजर आए, बिठा दो इस टपनी को यहीं पे। पूरी तवज्जो रखना। मैं थोड़ा बाज़ौक़ आदमी हूँ, अगर तवज्जो हट जाए मैं बोल नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। अगर आप सुनेंगे तो दिल से सुनेंगे तो मैं दिल से सुनाऊंगा। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। चंद मिनट मेरे पास बाकी है ताकि मैं बात को फिर किनारे भी लगाऊं। हाँ, पूरी तवज्जो रखना कि उस नबी का मिलाद, मेरे जैसा तिफल मकतब क्या बयान कर सकता है, जिसके लिए मैं एक जुमला कहा करता हूँ। पूरी तवज्जो से आपको जुमले सुनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि नबी की शान पर बहस न किया कर। तेरी मेरी औकात ही नहीं कि हम नबी की शान की गहराई तक, ऊंचाई तक, बुलंदी तक पहुँच सकें। क्यों? हम तो वहाँ तक नहीं अपनी नज़र और सोच पहुँचा सकते जहाँ तक मेराज की रात मेरे पैगम्बर के पाँव का जूता गया था। और जब हम नबी के पाँव के लगने वाले जूते मुबारक की शान तक नहीं पहुंच सकते, जहां तक वो पहुंच गया वहां तक हमारी कोई दूरबीन नहीं पहुंच सकती, तो फिर उस नबी की अजमत और रफ़त और मनक़बत पर कौन पहुंच सकता है। इसलिए मैं तुझे नबी की विलादत और नबी की आमद पे एक दो बातें करके बात को वाइंड अप करने चला हूं कि कायनात के रब ने रूए जमीन पर दरअसल भेजना तो आमना के दुरे यतीम को था, हाँ, लेकिन उसके लिए रब को इंतजामात करने पड़े, रब को इंतजामात करने पड़े। और आपने ये जलसा किया। पहले ये जलसा पिछले जुमे था, फिर कैंसिल हो गया हालात की वजह से, फिर इस जुमे का था, फिर दरमियान में कैंसिल हुआ, फिर कारी फलक शहर साहब ने कहा नहीं जी नहीं, हम इजाज़त ले रहे हैं, बस आपने हर सूरत आना है। मैं खुश हो गया भी चलो एक दिन रेस्ट का मिल जाएगा मुझे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जी आना है। तो फिर आज ये जलसा हो रहा है। कारी फलक शेर साहब से पूछो, उनकी टीम से पूछो, यहाँ के उनके जो मुआमिनीन हैं उनसे पूछो कि इस छोटे से जलसे के लिए इनको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितना खर्चा और चर्चा करना पड़ा होगा, कितनी तगोदौ करनी पड़ी होगी, कितनी लोगों की मिन्नतें करनी पड़ी होगी, कहाँ कहाँ ऐलान करना पड़ा होगा, हाँ, छोटे से जलसे के लिए। और उस नबी की आमद के लिए रब ने कितना इंतज़ाम किया होगा, जिसकी वजह से कायनात बनाई थी, जिसके लिए मैं जुमला कहा करता हूँ कि वजह कायनात मेरे पैगंबर की जात, रूहे कायनात मेरे पैगंबर की जात, आने कायनात मेरे पैगंबर की जात, शाने कायनात मेरे पैगंबर की जात, जाने कायनात मेरे पैगंबर की जात, माने कायनात मेरे पैगंबर की जात, जहाने कायनात मेरे पैगंबर की जात। वो नबी ना होता जमीनो ज़माना होते, वो नबी ना होता मकीनो मकाना होते, वो नबी ना होता हूरो गिलमा ना होते, वो नबी ना होता ये कहकशा ना होते, वो नबी ना होता सारे जहां ना होते। उस पैगंबर की अज़मत, उस नबी को भेजने के लिए
रब ने बड़े खूबसूरत इंतजाम और इंसराम किए। अल्लाह ने पहले कायनात अर्ज़ व समा को पैदा किया। पूरी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ने पहले कायनात अर्ज़ व समा को पैदा किया और पैदाइश के बाद जनाब आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। अब मैं, लोग कहते हैं देवबंदी मिलाद नहीं सुनाते, आओ तुम्हें मिलाद सुना के जा रहा हूँ। माशाअल्लाह। मेरे नबी का मिलाद कैसे है, मेरे नबी की विलादत व सादत कैसे है। मैं दौड़े मरसिए कसीदे कवाली नहीं सुनाऊंगा, कुरान और हदीस सुनाऊंगा। हाँ, और नबी का असल मिलाद आपको सुनाने चला हूँ। अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। पूरी तवज्जो मेरी तरफ। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को भेजा कि आदम जाओ। वो जमीन पे आए। अल्लाह क्या करूं, अल्लाह क्या करूं? फरमाया जा, तुझे मैं तकवीनी उमूर का पहला नबी बना रहा हूं। जमीन टेढ़ी है, जाके जमीन पे हल चला, जमीन को सीधा कर, इसलिए कि तेरे बाद मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आना है। कह दो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे आदम आए और अपने तकवीनी उमूर को सरंजाम देकर जमीन को सीधा कर गए। यहाँ जिम्मेदार काश्तकार बैठे होंगे। जब जमीन सीधी हो जाए, हल चल जाए, हमवार हो जाए, उसके बाद उस जमीन में पानी लगाया जाता है। रब ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। नूह, अब तेरी बारी है। अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया तुझसे पहले तेरे अब्बा आदम आए, आके जमीन पे हल चलाकर जमीन को सीधा कर गए, इसलिए कि उसके बाद मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा ने आना है। अब जमीन सीधी हो चुकी, तू जा, मैं तेरे दौर में तूफान नूह भेजूंगा। तू उस तूफान के जरिए जमीन को पानी लगाकर तरोताजा कर, इसलिए कि तेरे बाद मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा ने आना। अब जनाबे नूह अलैहिस्सलाम गुजर गए। पूरी तवज्जो रखना। जनाबे नूह गुजर गए, जनाबे इब्राहिम आए। अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया आदम आए, जमीन पे हल चलाकर जमीन को सीधा कर गए। नूह आए, जमीन को पानी लगाकर तूफान नूह के जरिए जमीन को तरोताजा कर गए। जब जमीन को पानी लग जाए तो फिर क्या करते हो? बीज डालते हो, दरख्त उगाते हो, फसल उगाते हो, सब्जे उगाते हो, फूल उगाते हो, फल और अनाज उगाते हो। अल्लाह ने भी यही तरतीब रखी कायनात को सजाने की। जब हल चल चुके, पानी लग चुका, अल्लाह ने कहा इब्राहिम अब तू जा। अल्लाह क्या करूं? फरमाया देखा नहीं, आदम ने हल चलाकर जमीन को सीधा किया मेरे नबी की आमद के लिए। नूह ने पानी लगाकर जमीन को तरोताजा किया मेरे नबी की आमद के लिए। अब तू जा, हल भी चल चुके, पानी भी लग चुका, उसके बाद इस जमीन पे बागीचे आबाद करने हैं। तुझे नमरूद नारे नमरूद में डालेगा और मैं उस नार को ठंडा करके तुझे जन्नत के बागीचे लगा के दूंगा। तो उन बागीचों की रखवाली कर, इसलिए कि तेरे बाद मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने आना। अब बागीचे लग चुके, फिर क्या? बागीचों लगने के बाद, फसल का बीज बोने के बाद, फसल जब थोड़ी सी ऊंची हो जाए, दरख्त ऊंचा हो जाए, फसल ऊंची हो जाए, फिर क्या है? दोबारा पानी लगाया जाता है। अल्लाह ने कहा इस्माइल अब तू जा। सुभान अल्लाह। जो जिंदा बैठा है वो कहे सुभान अल्लाह। इस्माइल अब तू जा। अल्लाह मैं क्या करूं? तो जो मेरी तरफ, या शेख थोड़ी देर मुझे देख, ये लाइव तबसरा नहीं, बाद में कर लेना प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी। अल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है? जनाब इस्माइल ने कहा। अल्लाह ने कहा इस्माइल, आदम ने हल चलाकर जमीन को सीधा किया, नूह ने पानी लगाकर जमीन को तरोताजा किया, इब्राहिम ने बागीचे आबाद करके जमीन को गोलो गुलजार बना दिया। अब उन बागीचों के लिए फिर पानी की जरूरत पड़ेगी। तू जमीन पे जाकर अपनी एड़ियां रगड़ेगा, मैं तेरी एड़ियों की वजह से जमजम के चश्मे बहा दूंगा। तो उन चश्मों की रखवाली कर, इसलिए कि तेरे बाद कायनात के सरदार मोहम्मद मुस्तफा ने आना है। ये मेरे नबी की आमद और विलादत और मिलाद की तैयारी हो रही है। अब जनाब इस्माइल गुजर गए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है? अल्लाह ने फरमाया पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना। अल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है? अल्लाह ने फरमाया आदम आए, हल चला गए, नूह आए, पानी लगा गए, इब्राहिम आए, बागीचे लगा गए, इस्माइल आए, चश्मे बहा गए। अब पूरी तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर। जब फसल तैयार हो जाती है ना, बाग पक जाता है ना, फिर चोर उचक्कों की बड़ी शदीद परेशानी और खतरा होता है। हाँ, कि अब पकी पकाई फसल को आके कोई चोरी ना कर जाए, फल कोई तोड़ ना जाए। अल्लाह ने कहा मूसा अब तू जा, अब दुनिया अपने शबाब पे आ गई है।
दुनिया अपने शबाब पे आ गई है। अब गुल गुलजार भी सज गए, जमजम के चश्मे भी बह गए। अब इस दुनिया के शबाब और गुल गुलजार को देखकर बड़े बड़े फिरौन उठेंगे और वो अपने आप को रब कहना शुरू कर देंगे। मूसा जा उन फिरौनों से टकरा और अल्लाह और रसूल की ताकत के डंके बजवा, इसलिए कि तेरे बाद आमना के दुर्रे यतीम ने आना है। अब मूसा आए, जमीन के जिंदा फिरौनों से टकराए और ऐसा टकराए कि फिरौन को पाश पाश करके गए, फिरौन को गर्क करके गए। अब जनाब मूसा चले गए, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है, मैं क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया पूरी तवज्जो चाहूंगा। ईसा आदम आए तकवीनी उमूर के नबी बनकर, हल चलाकर ज़मीन को सीधा कर गए। नूह आए तूफान में पानी लगाकर तरोताज़ा कर गए। इब्राहिम आए बागीचे आबाद कर गए। इस्माइल आए जमजम के चश्मे बहा गए। मूसा आए ज़मीन के जिंदा फिरौनों से टकराकर अल्लाह और रसूल की अजमत का लोहा मनवा गए। अब ईसा तुम जाओ, जिंदों को मूसा मनवा चुका, तू कब्रों के मुर्दों को जिंदा करके अल्लाह और रसूल की ताकत के डंके बजवा। जब जिंदा मुर्दा सारी कायनात अल्लाह रसूल की अजमत को पहचान लेगी, तब मैं अपना महबूब भेजूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अजमत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, सूरत मुस्तफा। नारे तकबीर। अब जब जमीन के जिंदा फिरौन और जमीन के मुर्दे भी कब्र से उठकर अल्लाह और रसूल की अजमत का लोहा मान चुके, अब अल्लाह ने कहा महबूब अब सारा इंतजाम और इंसराम हो गया है। अब मैंने दुनिया बनाई बसाई सजाई तेरे लिए थी, अब तेरे कदम के लिए दुनिया तरसती है। तू आ मक्के में कदम रख, ताकि मैं तेरे कदम रखने की वजह से कुरान में कसमें उठाऊं। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब मुझे मक्के तेरे शहर की कसम, कसम क्यों? इसलिए कि तेरे नबूवत वाले मुबारक कदम मेरे मक्के में आ गए। अब वो पैगंबर आए जिसके आने से फिर अजमत इतनी मिली दुनिया जहान को कि जो भी आता गया गोता खाता गया, पाक होके जाता गया। कायनात के रब ने फिर मेरे पैगंबर को दुनिया में भेजा। आओ तवज्जो रखना, अब असल मिलाद और विलादत की तरफ आ रहा हूं। भेजा कैसे भेजा? तू तो पता नहीं किस अंदाज में सुनता है, मैं तुझे हकीकी अंदाज में सुनाता जाऊं कि मेरे नबी का हकीकी मिलाद क्या है। मैं आज से नहीं सुनाऊंगा, मैं आदम अलैहिस्सलाम से सुनाऊंगा। जो जिंदा बैठा हो वो कहे सुभान अल्लाह, जिसको रब अपना नाम लेने देता हो वो कहे सुभान अल्लाह। कुछ लोगों की ज़बान अल्लाह बंद करता है, वो कहते हैं हम तो वीआईपी हैं, हमारा क्या काम है, सुभान अल्लाह तो गरीबों ने कहना है। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ जिसको अल्लाह नाम लेने देता हो वो कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने पैगंबर को दुनिया में भेजने के लिए सबसे पहले जनाब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर ऐलान किया कुल्लुम बनी आदम व आदम मिन तुराब। आदम को हमने मिट्टी से पैदा किया है, अब नौए इंसानी नस्ल इंसानी आदम अलैहिस्सलाम से चलेगी। अब तवज्जो रखना, डेरा मूसाबाद वालों, फारूकाबाद, शेखोपुरा और गिरदनवा वालों, मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना कि मेरे नबी की आमद कैसे हुई, मेरे नबी की विलादत और मिलाद कैसे हुआ। मेरे नबी की आमद का नक्शा मैंने पहले भी आपके सामने कायनात की तरफ खींच के दिखाया, अब मिलाद हकीकी की तरफ आ रहा हूँ। इस नबी को पैदा करने के लिए अल्लाह ने निज़ाम कायनात बनाया, बसाया, सजाया और फिर सबसे पहले उसमें जनाब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में जनाब शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर जनाब शीश की औलाद में जनाब अन्नोश पैदा हुए। फिर जनाब अन्नोश की औलाद में जनाब किनान पैदा हुए। फिर जनाब किनान की औलाद में जनाब यारद पैदा हुए। फिर जनाब यारद की औलाद में जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर जनाब इदरीस की औलाद में जनाब लामेक पैदा हुए। फिर जनाब लामेक की औलाद में जनाब नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में जनाब साम पैदा हुए। फिर साम की औलाद में जनाब अरफक्षाद पैदा हुए। फिर अरफक्षाद की औलाद में जनाब मुजर पैदा हुए। फिर मुजर की औलाद में जनाब मुदरक पैदा हुए। फिर मुदरका की औलाद में जनाब यारद पैदा हुए। फिर यारद की औलाद में जनाब राऊ पैदा हुए। फिर राऊ की औलाद में जनाब सरूज पैदा हुए। फिर
झरूज की औलाद में जनाब नाहूर पैदा हुए, फिर नाहूर की औलाद में उनका बेटा आजर पैदा हुआ, फिर आजर की औलाद में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर इब्राहिम की औलाद में जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर इस्माइल की औलाद में जनाब साबित पैदा हुए, फिर साबित की औलाद में जनाब सलमान पैदा हुए, फिर सलमान की औलाद में जनाब अल-यसा पैदा हुए, फिर अल-यसा की औलाद में जनाब अद पैदा हुए, फिर अद की औलाद में जनाब औद पैदा हुए, फिर औद की औलाद में जनाब अदनान पैदा हुए, फिर अदनान की औलाद में जनाब इरशाद पैदा हुए, फिर अदनान की औलाद में जनाब मालिक पैदा हुए, फिर मालिक की औलाद में जनाब फेर पैदा हुए, फिर फेर की औलाद में जनाब गालिब पैदा हुए, फिर गालिब की औलाद में जनाब लुवई पैदा हुए, फिर लुवई की औलाद में जनाब मुर्रा पैदा हुए, फिर मुर्रा की औलाद में जनाब किलाब पैदा हुए, फिर किलाब की औलाद में जनाब कुसई पैदा हुए, फिर कुसई की औलाद में जनाब मुर्रा पैदा हुए, फिर मुर्रा की औलाद में जनाब अब्द मनाफ पैदा हुए, फिर अब्द मनाफ की औलाद में जनाब हाशिम पैदा हुए, फिर हाशिम की औलाद में जनाब अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए, फिर अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में जनाब अब्दुल्ला पैदा हुए, फिर अब्दुल्ला की औलाद में ताजदार अंबिया सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का मिलाद, उस नबी की विलादत बासादत, उस पैगंबर की आमद जिसके लिए कायनात बनाई गई, बसाई गई, सजाई गई, चलाई गई, हाँ, और अल्लाह ने, हदीस रसूल पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ने कहा महबूब ये दुनिया उस वक़्त तक चलेगी, तवज्जो रखना आशिको, ये दुनिया उस वक़्त तक चलेगी जिस वक़्त तक ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दो जुमले जब तक दुनिया में एक बंदा भी बोलने वाला होगा, मैं दुनिया को आबाद रखूँगा। जिस दिन ये दो नाम ख़त्म हुए, मैं दुनिया पे क़यामत बर्पा कर दूँगा। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि वजह कायनात मेरे पैगंबर की ज़ात, रूह कायनात मेरे पैगंबर की ज़ात, और शान कायनात, जाने कायनात, आने कायनात, माने कायनात मेरे पैगंबर की ज़ात। और वो पैगंबर कि जिसके लिए मैं कहा करता हूँ कि वो तो इतना अरफा, आला, बरतर, बाला, अकमल, आसन, मुकम्मल, कामिल, अशरफ, अफजल, अतीब, अनवर, मुकद्दस, मुताहर, मुकर्रम, मुनव्वर, मुअब्बर, मुअत्तर है, बाबरकत व बासादत, तय्यब व ताहिर, अतर, मुताहर है कि सारी कायनात मिलकर भी मेरे पैगंबर के पाँव के जूते के तलवे की मिट्टी के जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकती। उस नबी का अपना शान कितना ऊंचा, अरफा, आला होगा कि जिस नबी के पाँव मुबारक से लगने वाले, जूते मुबारक से लगने वाली मिट्टी के जर्रे का मुकाबला कायनात मिलकर न कर सके, उस नबी की जात का मुकाबला कौन कर सकता है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि पहले तो कायनात में कोई ऐसा तराजू ही नहीं जिसमें मेरे नबी के शान को तोला जा सके, लेकिन अगर कोई बज़िद भी है कि नहीं नहीं तोल के दिखाओ, तो फिर मैं कहा करता हूँ दुनिया की किसी कंप्यूटराइज कंडे का काम नहीं है, रब की दरबार में चलते हैं, उससे मीज़ान अदल का तराजू मांगते हैं। उस तराजू के दो पलड़ों में से एक पलड़े में 7 ज़मीनें रख, 7 आसमान रख, हवा फजा खला का निज़ाम रख, नबातात, जमादात, दरिंदे, परिंदे, चरिंदे, इंसान, हैवान, मलाइक, नारी, नूरी, अर्शी, फर्शी, सूरज, चाँद, सितारे, सयारे, नुजूम, कवाकिब, शम्स, कमर, हजर, शजर, बहर, बर, शाम, सहर, नूर, बशर, जन्नत, हूर, गिल्मा, बैतुल्ला, बैतुल मुकद्दस, बैत इज्जत, बैत मामूर, लोह कलम, लोहे महफूज, सिदरतुल मुंतहा, अर्शे मुअल्ला, सारी कायनात उठाकर एक पलड़े में रख और आमना के दुर्रे यतीम को दूसरे पलड़े में खड़ा कर। मेरा और मेरे अकाबिर का ये अकीदा है कि सारी कायनात कम है, मोहम्मद की जात सारी कायनात से आला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, शान सहाबा, ताजदार ख़त्मे नबूवत, ताजदार ख़त्मे नबूवत, नारे तकबीर। मैंने 50 मिनट बोलना था, वो तो हो गए ख़त्म। अब 10 मिनट गरे भी मैं दे रहा हूँ, अगर आप जिंदा रहे। पूरी तवज्जो रखना। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं अभी तकरीर शुरू नहीं कर सकता और मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है, और लोग कहते हैं मानते नहीं।
कोसारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी, कोसारों के पहाड़ों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी। और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते, पत्थर जब रोते हैं तो दरिया और चश्मे बहा देते हैं। हाँ, आओ तवज्जो रखना, ये मैंने आपको अपने पैगंबर की दुनिया का मकाम बताया। अब आओ मैं तुम्हें आलम महशर में ले चलूं। सब ने जमा होना है वहां पे। आओ तुम्हें वो मंजर भी दिखा दूं ताकि तुम इधर उधर भटकने से बच जाओ। मैं तुम्हारी जान, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा माल सब कुछ बचाने आया हूं, तुम्हारा ईमान बचाने आया हूं कि आओ अल्लाह रसूल की बातों पे इकट्ठे हो जाए। कह दो सुभान अल्लाह। इत्तेहाद की बात पे कोई नहीं कहता सुभान अल्लाह। मैं उसको गाली दूं, वो मुझे गाली दे, फिर बड़ा सुभान। आज मौली ने चस कर दी है जी, है आज मौली साहब ने जनाब फट्टे चक दीते ने। नहीं, आओ अब इत्तेहाद का वक्त है, मगर ना कुचले जाओ एक एक करके। आओ छोटे मोटे इख्तलाफात भुलाओ, हम सब मुसलमान भाई हैं, कलमा गो हैं। हमारा कलमा एक, नमाज एक, कुरान एक, किबला एक, हज एक, उम्रा एक, कुर्बानी एक, जनाजा एक, निकाह एक, तलाक एक, सब कुछ एक। छोटे छोटे मसलों पे वो कुलखानी वाले छोटे छोटे मौलवियों ने हमें लड़ाया हुआ है। हाँ, बड़े उलमा के पास जाके बैठो, एक दूसरे का बड़ा एहतराम करते हैं, जिनके पास इल्म है, नॉलेज है, और नॉलेज भी विदाउट फॉलेज है। माशाअल्लाह। हाँ, नॉलेज भी हो मगर विदाउट फॉलेज हो। कुछ कमज़ोर नॉलेज भी होती है ना, फॉलेज ज़्यादा, लूले लंगड़े मौलवी, ओ वेलों वाले, हाँ कुलखानियों वाले बेचारे, आता वाता कुछ नहीं, सुनी सुनाई रटी रटाई आके बातें कर दी और कौम को गुमराह करके चले गए। नहीं, आओ इत्तेहाद का वक्त है, मुश्तरकात पे इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह रसूल और साहब अहले बैत की इज्जत के लिए इकट्ठे हो जाओ। फिर देखो पाकिस्तान में इनकलाब कैसे आता है। आओ मैं तुम्हें आलम महशर का मंजर दिखाकर बात को वाइंड अप करने चला हूँ। कुरान उस मंजर के लिए मंजर कशी करता है। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। वो दिन जब बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, बीवी शौहर की नहीं होगी, शौहर बीवी का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी, बेटी माँ की नहीं होगी, बहन बहन की नहीं होगी, भाई भाई का नहीं होगा। उस आलम महशर में सारी दुनिया के लोग अपने अर्क में गर्क, पसीने में शराबूर, हाय वाय नफसी नफसी का आलम। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी का आलम। सारी दुनिया परेशान एक दूसरे के साथ जमा होकर कहेंगे, आओ यारो आज किसी के दरवाजे पे चले और उसे कहे रब की दरबार में चलो, हमारी सिफारिश तो करो। क्या सिफारिश? जन्नत नहीं, सिर्फ इतनी सिफारिश कर दो कि रब्बा हिसाब तो शुरू कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। पूरी तवज्जो रखना। सिफारिश क्या? ये नहीं कि जन्नत ले दो। आजकल तो जन्नत रेवड़ियों पे बिक रही है, जलेबियों पे बिक रही है। बड़ी सस्ती कर दी जन्नत, बड़ी सस्ती कर दी। सिफारिश क्या? जन्नत की नहीं। लोग मिलके ना, एक दुनियावी मिसाल आपको दे रहा हूं। इलेक्शन के दिनों में वोटिंग के लिए लंबी कतार लगी हुई हो 400-500 बंदों की। पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनना, शायद किसी का ईमान और यकीन और कामिल अकीदा बन जाए। हाँ, लंबी लाइन हो और अचानक वोटिंग बंद हो जाए और मौसम भी गर्मी का हो, कैसे थरथरी मच जाती है। वो कहते हैं यार इन्हों को जल्दी चलाओ, चल साहब जल्दी चलो नहीं तो ऐसे जान लगे। होता है ना, कितना आवाजारी होती है। फिर खुद सोच क़यामत के दिन कितनी आवाजारी होगी जब सूरज सर पे खड़ा होगा, ज़मीन तांबे की होगी, पसीने में हम शराबूर होंगे। हाँ, और ऐसा मंजर होगा कि किसी को किसी का ख्याल ही नहीं होगा। आज जो माँ अपने दूध पीते बेटे की एक चीख बर्दाश्त नहीं कर सकती, हांडी जलती है जल जाए, दूध जलता है जल जाए, लेकिन वो हर चीज़ छोड़ कर आकर बच्चे को सीने से लगाकर पहले उसको दूध पिलाती है, लोरिया दे के सुलाती है, फिर किसी काम जाती है। वही माँ, हदीस में आता है, क़यामत के दिन अपने सगे बेटे को, दूध पीते बच्चे को अपने पाँव के नीचे रौंद के चली जाएगी और उसे परवाह भी नहीं होगी। ये मंजर लोग कहेंगे आओ, पूरी तवज्जो रखना, हदीस पढ़ रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आओ यार आज किसी नबी के दरवाजे पर चले और उसे कहे हमारी सिफारिश कर। आज ते तेरा गैरा तेनू लुट्टी फिर दे, इत्थे मैनू राजी कर, उत्थे मैं छुड़ावांगा, लग जाएगा पता।
गैरा खाएगा तेरे को ले गा तेरे को ते उल्टा तेरा ज़हन की बनाएगा भाई ये कहना है भाई सरकार दे जुतियां दे सदके चल रहे हैं जी। वो लैंड क्रूजर ते पहुंच गया, ये साइकिल तू अगे नहीं गया तो सरकार दे जुतियां दे सदके खा रहे हैं। पूरी तवज्जो रखना, अकीदा बनाना चाहता हूँ। लोग कहेंगे आओ आज किसी नबी के दरवाजे पे, पीर के दरवाजे पे नहीं, गौस अब्दाल कुतुब मुहद्दिस मुफस्सिर, कोई खतीब, कोई बाबा, कोई बड़ा चाचा मामा ताया, किसी नहीं, आओ किसी नबी के दरवाजे पर चलें और उसे कहें आज इतनी तो सिफारिश कर दो, अल्लाह हिसाब शुरू कर, जन्नत सुटना ही सुट, जहन्नम में सुटना ही सुट, असी ते पहले मर दिया। मंजर ऐसा होगा हौलनाक कि लोग कहेंगे अल्लाह हिसाब तो शुरू कर। आओ जाके हदीस में पढ़ना, किसी मौलवी से पूछना, लोग दर आदम पे जाएंगे और आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे जनाब आदम आप तो जद्द इंसानियत हैं, आप तो अबुल बशर हैं, आप तो सारे तकवीनी उमूर के सबसे पहले नबी हैं, आप पूरी इंसानियत के बाप और जद्द अमजद हैं, आप तो मस्जूद मलाइक और मकीन जन्नत हैं। आएँ आज अल्लाह की दरबार में हमारी इतनी सिफारिश तो कर दें, अल्लाह लोग मर रहे हैं, पसीने में शराबूर हैं, इनका हिसाब तो शुरू कर, यमीन और यसार के फैसले तो कर, जन्नत जहन्नम और आराफ के फैसले तो कर। आदम अलैहिस्सलाम का जवाब सुन, तेरा ईमान ताज़ा हो और लूट मार करने वालों से तुझे खुलासा हो। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे जाओ आज मेरे बस का रोग नहीं, रब गुस्से में जलाल में खड़ा है, ऐलान कर चुका है लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज वो अपने कहर के उरूज पे खड़ा है। आदम की ज़बान में जुर्रत ही नहीं है कि आज जाके अल्लाह के सामने लब कुशाई कर सके और तुम्हारी सिफारिश कर सके। लोग दरे नूह पे जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम आप तो वो पैगंबर हैं जिसने 950 साल तक अपने वजूद पे पत्थरों की बारिश बर्दाश्त करके अल्लाह की तौहीद की तस्बीह पढ़ी थी। आप अल्लाह की दरबार में सिफारिश करें, वो भी कहेंगे आज मेरे बस का रोग नहीं, रब अपने जलाल के उरूज पे खड़ा है। लोग जनाब इब्राहिम और इस्माइल, जनाब हिस्कील और दानियाल, जनाब यूनुस और इदरीस, जनाब यूशा और शीश, जनाब उज़ैर और शुएब, जनाब सालेह और सुलेमान, जनाब दाऊद और अय्यूब, जनाब याकूब और यूसुफ, जनाब ज़करिया और याहया, जनाब मूसा और ईसा, जनाब इलियास और अलियसा, जनाब हिस्कील और ज़ुल किफ़ल, सारे नबियों के दरवाजे पर जाएंगे। आओ अल्लाह के नबियों आज इतनी सिफारिश कर दो कि रब हमारा हिसाब शुरू करे। हर नबी आदम से लेकर ईसा तक ये कहकर जवाब देगा कि आज मुझे अपनी लगी हुई है, तुम कहते हो तुम्हारी सिफारिश करूं, रब गुस्से में खड़ा है, जलाल में खड़ा है, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार का ऐलान कर चुका है, मेरे बस का रोग नहीं, जाओ किसी और दरवाजे पर। तो फिर होगा क्या? आओ फिर तसल्ली करो, फिर होगा क्या? सारी दुनिया के लोग तेरे और मेरे पैगंबर, सरवरे कौनैन, साकी कौसर, ताजदारे मदीना, फखरे दो आलम, आमना के दुर्रे यतीम, अहमद मुश्तबा, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर आएंगे और आके अर्ज करेंगे अल्लाह के नबी आप तो सैयद कायनात, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, रईसुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, अव्वलुल अंबिया, आखिरुल अंबिया, ज़ाहिरुल अंबिया, बातिनुल अंबिया, हाशिरुल अंबिया। हाँ, आप आएँ अल्लाह की दरबार में सिफारिश करें, अल्लाह हमारा हिसाब तो शुरू कर। आज तो हर कोई तुझे कहता है ना मैं छुड़ाऊंगा, मैं तुझे हदीस सुना रहा हूँ, अपना कोई जाती कहानी या किस्से नहीं सुना रहा। हाँ, जनाबे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को कहेंगे घबराने की ज़रूरत नहीं, आओ मैं चलता हूँ, आओ मैं चलता हूँ। क्यों? इसलिए कि मेरे रब ने दुनिया में मुझसे वादा किया था महबूब वाला सौफा यूती का रब्बु का फतरजा, अन करीब वक़्त आने वाला है, तू दुनिया में सर सजदे में झुका के मुझे राजी कर रहा है, मैं तेरा सर क़यामत के दिन उठा के तुझे राजी करूँगा। वाला सौफा यूती का रब्बु का फतरजा, महबूब तू झोली फैलाएगा, मैं भर के दूंगा, शफाअत करेगा, पूरी करके दूंगा। वाला सौफा यूती का रब्बु का फतरजा, आओ मैं चलता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रहे, आओ मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारी सिफारिश करता हूँ। हुजूर अल्लाह की दरबार में जाएंगे और जाके सरबत सुजूद होंगे, हदीस का तर्जुमा कर रहा हूँ, जाके सरबत सुजूद होंगे और अल्लाह की हम्द व सना, तमजीद व तकदीस व तारीफ़ व तामीद व तस्बीह व तहलील में महव मस्त व मगन होंगे। हाँ, जब हुजूर सजदा तवील करेंगे, लंबा करेंगे, अल्लाह की हम्द व सना में महव होंगे ना, अल्लाह पाक प्यार से हाँ फरमाएंगे महबूब इरफा रासक, महबूब इरफा रासक, आज तेरा सर झुकने के लायक नहीं,
تو نے مکے میں، مدینے میں، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، ذات الرقاع میں، موتا میں، غاروں میں، مزاروں میں، ہاں تو نے ہر جگہ پر سر سجدے میں جھکا کر مجھے راضی کیا تھا۔ ارفع راسک، آج تیرا سر جھکنے کے لائق نہیں، سر اٹھا، میں تجھے شفاعت کا تاج پہناتا ہوں۔ ارفع راسک، محبوب گردن اونچی کر، میں شفاعت کا صحرا ڈالتا ہوں۔ ارفع راسک، محبوب کندھے اونچے کر، میں شفاعت کے تمغے لگاتا ہوں۔ سل، مانگ، اشفا، سفارش کر، میں قبول کرتا ہوں۔ اب پوری توجہ رکھنا، آخری چند منٹ ہے میرے پاس، خلاصہ کلام دینے چلا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے محبوب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو اللہ کے نبی عرض کریں گے اللہ تیری پوری مخلوق عرق میں غرق ہے، پسینے میں شرابور ہے، زمین تانبے کی ہے، سورج سر پہ کھڑا ہے، اپنے پسینے میں بیچارے تیر رہے ہیں، اللہ ان کا حساب و کتاب تو شروع کر۔ توجہ رکھنا موسیٰ آباد والو، ہاں فاروق آباد والو، شیخو پورہ والو، خلاصہ نکالنے چلا ہوں۔ اللہ ان کا حساب و کتاب تو شروع کر، یمین و یسار کے جنت جہنم آراف کے فیصلے تو کر۔ توجہ کرنا، اللہ فرمائیں گے محبوب تیری درخواست قبول، عرض قبول، ریکویسٹ قبول، التماس قبول، ہاں لیکن مجھے بتا تو صحیح آدم سے لے کر محمد تک، کہہ دو صلی اللہ ہو، جب بھی حضور کا نام آئے امتی پہ لازم ہے زبان پہ درود و سلام آئے۔ محبوب آدم سے لے کر تم تک کس نبی کا کون سا امتی ہے جو میرے میزان عدل کے ترازو میں تلنے کی جرت رکھتا ہے؟ بتا تو صحیح، میں حساب تو شروع کروں، کس سے شروع کروں؟ سبحان اللہ۔ کوئی ہے جو میرے سوالوں کا جواب دے سکے؟ کوئی ہے جو مجھے حساب و کتاب دے سکے؟ اب جملہ سن، تیرا ایمان تازہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر عرض کریں گے اللہ میں آدم سے لے کر اپنے تک کسی نبی کے کسی امتی کی شورٹی اور گارنٹی نہیں دیتا، لیکن میں اپنی امت کا امام، اپنا یار غار، اپنا رفیق مزار، اپنا رفیق کوثر، ہاں اپنا وہ وفادار یار طیبہ کائنات عائشہ صدیقہ کا باپ ابو بکر صدیق اکبر پیش کرتا ہوں۔ اللہ میرا یار کھڑا ہے، اس سے حساب و کتاب کر، سوال و جواب کر، اگر لینے کے دینے نہ پڑ جائے محمد کا یار نہ کہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ یہ میں نے خطیب اہل سنت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ نقل کیا ہے۔ بخاری وجد میں آ کے کہتا تھا، اللہ کے نبی کہیں گے اللہ ساری دنیا کی میں ذمہ داری نہیں اٹھاتا، ہر کوئی حساب دے گا، لیکن میرا یار کھڑا ہے، میرا یار کھڑا ہے، اللہ میں اس کو پیش کرتا ہوں، اس سے سوال و جواب کر، حساب و کتاب کر، پوچھ زندگی دی تھی کہاں لٹائی، بچے دیے تھے کہاں لٹائے، دولت دی تھی کہاں لٹائی، کپڑے دیے تھے بیچ کر پیسے کس کو دیے تھے، کندھے دیے تھے کسے اٹھایا، جھولی دی تھی کسے سلایا۔ اللہ میرا یار ابو بکر کھڑا ہے، اس سے حساب و کتاب کر، اگر لینے کے دینے نہ پڑ جائے محمد کا یار نہ کہنا۔ اب آؤ اللہ پاک فرمائیں گے وہی رب وہی رب وہی رب جو تھوڑی دیر پہلے اعلان کر چکا تھا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا میں کس کس کو مانتے تھے، آج بتاؤ سارے کہاں ہیں؟ کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی، کوئی جواب نہیں دے گا، ساری دنیا خاموش ہوگی۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج اللہ کی بادشاہی ہے۔ ہاں اب تھوڑی دیر پہلے رب غصے میں تھا جب حضور یار غار پیغمبر، رفیق مزار، رفیق ہجرت، رفیق کوثر، رفیق جنت، ہاں جناب سیدنا صدیق اکبر کا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا چہرہ رب کے سامنے پیش کریں گے، اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے محبوب پوری توجہ رکھنا، موسیٰ آباد والو میرے جملے ضائع نہ کرنا، یہ جملے تمہیں قسمت سے مل رہے ہوں گے، ہاں میں کوئی رسمی تقریر نہیں کرنے آیا، پوری توجہ رکھنا۔ اللہ فرمائیں گے محبوب محبوب یہ وہی ابو بکر نہیں جس کا تو بھی مکروز ہے میں بھی مکروز ہوں۔ کوئی ان پڑھ پریشان ہو جائے گا، وضاحت کر دوں، ہاں اللہ فرمائیں گے محبوب یہ وہی ابو بکر نہیں
جس کا تو بھی مقروض ہے میں بھی مقروض ہوں. کیسے؟ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا تھا، خطبے میں سارے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہ زمین والوں، مجھ پہ جس نے بھی کوئی احسان یا بھلائی کی سب کے بدلے دے کے جا رہا ہوں. اکیلا ابو بکر باقی ہے جس کے بدلے محمد دنیا میں نہیں دے سکا، قیامت کے دن رب سے لے کے دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، عظمت صحابہ. نعرہ تکبیر. اللہ فرمائیں گے محبوب یہ وہی ابو بکر نہیں. پوری توجہ چاہوں گا، 1 سے 2 منٹ باقی ہے. محبوب یہ وہی ابو بکر نہیں جس کا تو بھی مقروض ہے میں بھی مقروض ہوں. اگلا جملہ کہنے چلا ہوں، پوری توجہ میری طرف. ابھی چاول نہیں آنے، میں جاؤں گا تو چاول آئیں گے. ہاں یا شیخ ادھر دیکھ. ہاں I am chief guest and beautiful ماشاءاللہ. پوری توجہ رکھنا، بات ختم کرنے چلا ہوں. دوسرا جملہ، پہلا جملہ میں نے کہا، ہاں پہلا جملہ محبوب یہ وہی ابو بکر نہیں جس کا تو بھی مقروض ہے جس کا میں بھی مقروض ہوں. دوسرا جملہ اللہ فرمائیں گے محبوب پوری توجہ سے میرے دل کے جملے کو اپنے دل کے کمپیوٹر میں سیو کر لینا، بڑی دیر اور دور تک انجوائے کرتے رہو گے. اللہ فرمائیں گے محبوب یہ وہی ابو بکر نہیں جس نے زندگی میں نہ کبھی تجھ سے حساب کیا تھا نہ کبھی مجھ سے حساب کیا. یہ وہی ابو بکر نہیں جب تو نے چندہ مانگا دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہا تھا کہ سوئی دھاگا نہ کھڑا ہو، وہ بھی گھر میں نہ بچ جائے، سب کچھ نبی کے قدموں پہ لٹا دوں. اب اللہ فرمائیں گے محبوب جب اس نے تجھ سے اور مجھ سے کبھی حساب نہیں کیا تو میں ابو بکر سے حساب کیوں کروں. ابو بکر جنت کے ہاتھوں دروازے کھلے ہیں، پوری جنت تیری ہے، تو بھی جا، جس کو لے جانا چاہتا ہے اسے بھی لے کے جاؤ. عظمت سیدنا صدیق اکبر، عظمت سیدنا صدیق اکبر. دعا ہے اللہ تجھے اور مجھے نبی اور صحابہ اور اہل بیت کا سچا نوکر بنائے، سچا محب بنائے. آخر میں وہی کہتا ہوں کہ اپنی اس مسجد کا خیال کرو. دنیا داری 4 دن کی ہے، کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے. جتنی جائیدادیں ہم چھوڑ جائیں گے نا وہ پچھلے انجوائے کریں گے، ہمیں کچھ نہیں ملنا اس میں سے. اپنے ہاتھوں سے کچھ لگا کے جاؤ گے تو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. دوسروں کے دھوکے میں نہ رہنا کہ مجھے دے دو وہاں میں چھڑاؤں گا، کوئی نہیں چھڑائے گا. جو عمل خود کر کے جاؤ گے وہی کام آئیں گے. دوسروں کے عمل دوسروں کے نہیں کام آئیں گے. شر یرا یا خیر یرا، وہ تمہارے کھاتے میں تمہارا ہوگا، شر ہوگا یا خیر ہوگا. اس لیے اگلی دفعہ جب مجھے بلاؤ تو پھر یہ مسجد کی توسیع بھی ہو چکی ہو اور یہاں پہ خوبصورت جامع مسجد بھی بن چکی ہو. رب محمد کی قسم جس محلے کی مسجد وسیع و عریض اور خوبصورت ہو اللہ اس پورے محلے کے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے. اگر مسجد ویران ہوئی، مسجد ٹوٹی پھوٹی ہوئی، مسجد چھوٹی موٹی ہوئی تو کبھی تمہارے گھر بھی ترقی نہیں کر سکیں گے. یقین سے کہتا ہوں، میں نے بہت سارے ایسے اجڑے ہوئے محلے دیکھے ہیں جن کی مسجدیں اجڑی ہوئی تھی، جن کی مسجدیں اجڑی ہوئی نہیں ہیں ان کے محلے بھی اجڑے ہوئے نہیں ہیں. میں امید بھی رکھتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں اللہ اس مسجد کو جامع مسجد بنائے اور اللہ اس کو وسیع اور عریض اور خوبصورت مسجد بنائے تاکہ آپ کے اور آپ کے بڑوں کے اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے. آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے. وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے. اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب المیزان. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفار. اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا مرضى المسلمین
یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو زندہ ہے ان کو صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ ہم سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر میں، صحت میں، کاروبار میں، فصلوں میں، باغات میں برکت عطا فرما، یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ ہر جادو سحر ٹونے نظر بد سے محفوظ فرما، یا اللہ حاسدین مخالفین منافقین کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو ہر جن و انس کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ اس جامع مسجد کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچا، اسے وسیع و عریض اور خوبصورت بنا، یا اللہ جو بھی اس پہ تیرے گھر پہ مال لگائے اس کو ہزاروں گنا زندگی میں واپس لوٹا دے، یا اللہ ہمارے تمام اعمال میں برکت عطا فرما، یا اللہ زندگی سعادت والی اور موت شہادت والی عطا فرما، اللہم احینا سعیدا وامتنا شہیدا، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔